بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ماں باپ ناراض ہو تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر بھی دعا کرنے سے رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ میری پیاری اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت محنت سے کی جانے والی عبادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، ذکر و اذکار، وظائف قبول ہو جائیں اور والدین کے ساتھ کی جانے والی ذرا سی کوتاہی آپ کی عبادت اور آپ کی نیکیوں کو ضائع نہ کر دے، تباہ نہ کر دے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چاہے 1000 تہجدیں پڑھ لے، ہر شب لیلۃ القدر کی تلاش میں گزار لے، 1000 بار غلاف کعبہ تھام کر رو رو لے، ہر جمعہ ہر پیر روزہ رکھ لے، صدقہ کرے، خیرات دے، کبھی غریبوں کو کھانا کھلائے، کبھی مسجدیں بنوائے، اور یہاں تک کہ جہاد پر بھی چلے جائیں۔ اگر تیری ماں تیرے رویے سے ناراض ہے، اگر تیرے باپ کی آنکھوں میں تیری بے ادبی کی چبھن ہے، تو یاد رکھ تیری ساری عبادت، وظیفے، اذکار، حج، روزے، جہاد، سب کچھ ضائع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان، نمبر 2، شراب پینے والا، اور نمبر 3، اور وہ شخص جو قطعاً تعلق رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی نماز، روزے، صدقہ سب اس کے یہ بڑے ہوں گے، مگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے اس کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں ضائع نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو عبادت کریں وہ ضائع نہ ہو، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جو سمجھتا ہے کہ تو وظیفے سے سب کچھ پا لے گا، نہیں، وظیفہ تب کام آتا ہے جب والدین کی رضا تیری ساتھ ہو، ورنہ ہر لفظ، ہر سجدہ، ہر دعا عرش سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہ کعبہ ہے، یہ غلاف کعبہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ دل سے روتے ہیں، جہاں ہر زبان پر ایک ہی التجا ہوتی ہے، کیا کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ مگر ذرا سوچو، اگر وہ دعا اشک سے ٹھکرا کر واپس پلٹ آئے، اگر تم غلاف کعبہ پکڑ کر بھی رو رو کر دعا کرو اور عرش سے ایک آواز آئے، واپس جا، پہلے ماں کو منا، پہلے باپ کو راضی کر، پھر یہ تیرا سارا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ البنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ جب اللہ نے اف تک منع کیا ہے، یعنی کہ والدین کو اف تک بولنے سے منع کیا ہے، تو سوچو جس نے زبان درازی کی، چیخا، بولا، طعنہ دیا، اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں جہاد پہ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا،
फिर उनकी खिदमत में जहाद करो। ये वो दिन है जहां काबा के बराबर फजीलत माँ बाप के कदमों में रख दी गई है। एक दीनदार नौजवान, दीन का बहुत ज्यादा खिदमत करने वाला, दीन को समझने वाला, नमाज का पाबंद, रोजे का आशिक लैलतुल कदर की रात उम्रे पे गया, काबा के सामने घंटों रोया, गुलाफे काबा को थाम कर इल्तजा की कि या अल्लाह मेरी तंग दस्ती दूर कर दे, मेरे रिज़्क में बरकत दे। मगर किस्मत वही रही, परेशानियां वही रही। क्यों? उस रात उसकी माँ शहर के एक कमरे में उदास, तन्हा और इसकी बेहसी यानी कि उसकी जख्मी दिल के साथ नमाज में बद्दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को उस वक्त तक सुकून न दे जब तक वो मेरे आंसू न पोंछे। वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिस रात फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं, लेकिन तुम माँ बाप से लड़ कर आओ और सोचो रब के फरिश्ते तुम पर सलाम भेजेंगे। तुम बाप की दिल आजारी करके आओ और समझो दुआ अर्श पर पहुंचेगी। नहीं, ये वो रात है जहां जमीन से अर्श तक सिर्फ उनका जिक्र होता है जिनसे उनके माँ बाप राजी हों। एक लड़की थी, दीन की तरफ माइल हुई, पर्दा किया, मगर माँ को जाहिल कहकर पुकारती, बाप को दुनियादार कहकर नजरअंदाज कर देती। लैलतुल कदर की रात इबादत में गुजारी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी रही। अगली सुबह जब उसने एक बुजुर्ग औरत को देखा जो अपने बेटे के कदम चूम रही थी, तो वो टूट कर लड़की रोने लगी और उस रात वापस घर गई। माँ के पांव पकड़कर माफी मांगी और बाप को गले लगाया। फिर अगली लैलतुल कदर की रात उसने जो मांगा अल्लाह ने सब उसे अता किया। एक गरीब लड़का रोज माँ का चेहरा चूम कर घर से निकलता। एक दिन उसने कहा, माँ मेरे लिए दुआ कर। माँ ने कहा, या अल्लाह मेरे बेटे का नसीब खोल दे, जिस दरवाजे पे जाए वो उसके लिए खुल जाए। चंद महीनों में वही लड़का जो ठेले पर काम करता था कारोबार का मालिक बन गया। जब उससे किसी ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ के हाथ चूमता था और अल्लाह ने ये मुझे उसकी बरकत और बदौलत सब कुछ अता किया। एक और नौजवान अपने वालिद से झगड़कर घर छोड़ गया। 10 साल तक ना मिलने आया। बाप दुनिया से चला गया, ना जनाजे में आया ना कब्र पर। आज वो लंदन की गलियों में भटकता है। दौलत है, बंगला है, पर दिल खाली है। हर रमजान, हर लैलतुल कदर की रात वो काबे के सामने रोता है, लेकिन तकदीर खामोश है, क्योंकि जिस बाप ने जन्नत का बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया था, वो नाराज दुनिया से चला गया। अब उसकी कबूलियत कैसे होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी माँ आमना की कब्र पर गए कि सहाबा भी साथ थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर इतना रोए कि साथ सहाबा भी रोने लगे। जरा सोचो, अल्लाह के हबीब माँ के लिए आंखों से आंसू बहाते हैं, और तुम हो जो जिंदा माँ को छोड़कर अल्लाह की रजा चाहते हो। ये कैसे हो? लैलतुल कदर तलाश किया करो। अगर तुम गुलाफे काबा पकड़ने जा रहे हो तो पहले उन हाथों को थाम लो जिन्होंने तुम्हें बचपन में थाम रखा। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें बख्श दे तो पहले उनके दिलों से यानी कि दिलों से अपने वालिदैन से माफी मांगो।
जिनके साथ तुमने जुल्म किया। माँ बाप की रजा जन्नत का दरवाजा है, वरना तुम्हारे सजदे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी लैलतुल कदर सब बेअसर हो जाएंगे। आखिर में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी रजा यानी कि उनको राजी करने की हमें हिम्मत अता दे, और जिनके दुनिया से वालिदैन चले गए हैं उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, या अल्लाह उनको बख्श दे। या अल्लाह मेरी सारी इबादतें, मेरी सारी दुआएं, मेरे सारे सजदे, मेरे सारे रोजे सब कुछ तेरे दर पर हाजिर हैं, मगर या रब अगर मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं तो मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए जो तूने दुनिया वालों को दिया है, मुझे तो सिर्फ उनकी रजा चाहिए। ऐ परवरदिगार, जिस दिन मैंने उनके चेहरे पर गुस्से की एक लहर भी देखी, जिस दिन मेरे लफ्जों ने उनके दिल को जख्मी किया, जिस दिन मैंने उनके सामने जबान दराजी की, तो उस दिन मेरी रूह पर दाग लग गया। या अल्लाह ऐ रब्बे काबा, मेरे हज को कबूल कर, अगर वो मुझसे राजी हो। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी तहज्जुदों में आंखों से बहने वाले आंसू तब ही आसमान तक पहुंचेंगे जब माँ की आंखें मुझ पर मोहब्बत से ठंडी हो और बाप का दिल मेरे लिए दुआ से लबरेज हो। ऐ मेरे परवरदिगार मौला, मेरी हर नेकी, हर नियत, हर जिक्र उस वक्त तक अधूरा है जब तक मेरा माँ बाप की रजा शामिल ना हो। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रहमानो करीम मौला, मैं आज तेरी चौखट पर हाथ फैलाकर खड़ी हूँ, मगर मेरे खाली हाथ हैं, क्योंकि मेरे दिल में एक खौफ है, कहीं मेरा बाप या माँ मुझसे नाराज तो नहीं। या रब, अगर मैंने कभी उन्हें उफ कहा हो, अगर कभी उनकी आंखों में मेरी रवैये की तकलीफ से उतरे हो आंसू, तो वो मुझे माफ फरमा दे और उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भर दे। ऐ अल्लाह, अगर मेरे सजदे तेरे अर्श तक नहीं जा रहे, अगर मेरी दुआएं वापस लौट रही हैं, तो मुझे इशारा दे, आवाज दे कि जा पहले माँ बाप को राजी कर। या रब, मुझे वो लम्हा याद दिला जब मेरी माँ ने मेरी खातिर रात भर जागी थी, वो दिन याद करा जब मेरे बाप ने अपनी खुशी कुर्बान करके मेरा ख्वाब पूरा किया था। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर वो मुझसे नाराज हैं तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना दे दे कि मैं उनके कदमों में झुक सकूं, उनकी आंसू पूज सकूं और उनके दिल से निकली बद्दुआ को तौबा से मिटा सकूं। या अल्लाह, मेरे सजदे, मेरी तहज्जुद, मेरा रोजा, मेरा हज सब कुछ तब ही मुकम्मल होगा जब माँ की मुस्कुराहट मेरे लिए दुआ बन जाए और बाप का दिल मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे। या रब, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें अपने रजा का रास्ता दिखा, और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और हमें उनके हक में सच्ची औलाद बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो आज हम सब अल्लाह से यही दुआ करते हैं, आज मैं तेरे दर पर तौबा करती हूँ, मैं उनके कदमों में झुकने जा रही हूँ जिन्हें तूने जन्नत कहा। मुझे माँ की दुआओं का साया वापस चाहिए, मुझे माँ बाप के हाथों की शफकत वापस चाहिए, मुझे वो रातें वापस दे दे जिनमें मेरी माँ जागी थी, वो दिन जिनमें मेरे बाप ने मेरे लिए खुद को कुर्बान किया। ऐ मेरे रब, अगर तू राजी है, अगर तू नाराज है तो मैं समझ सकता हूँ, अगर मेरे रब तू मुझसे नाराज है तो मैं ये बात को संभाल सकती हूँ। अगर
बाप नाराज हो तो मेरा कोई सहारा नहीं। ऐ मेरे रब, माँ बाप की रजा दे दे ताकि तेरी रजा मिल जाए। माँ बाप को माफ करने वाला दिल दे दे ताकि तू भी मेरा हिसाब आसान कर दे। मुझे या मेरे मौला हमें ऐसा बेटा और ऐसी बेटियां बना जो जन्नत के दरवाजे खोलने वाले हों और ना कि उन्हें बंद करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे खालिक, मेरे राज़िक, मेरे परवरदिगार मौला, ये हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा और हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की और उनके साथ दिल से मेहनत